अब बारी आई है कि 1915 का देख लिया जाए। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट पहले छूट गया था। Legislative Council were empowered to move resolution on the budget and on any matter of the public interest except certain specified subjects such as the armed forces, foreign affairs of the Indian state. To provide for the first time of the separate representation of the Muslims committee and thus the sowed the seed of separatism. ये मतलब 1909 का था, माल्य वाला। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, द एक्ट वाज पास टू कंसोलिडेट द प्रोविजन ऑफ द प्रीसीडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लंबा भी है। पहला है द देन द सेक्रेटरी ऑफ द इंडिया स्टेट एम एस मॉन्टेक द गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड चेम्सफोर्ड फॉर्मुलेटेड द प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दूसरा पॉइंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस वाज टू बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द इम्पायरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नर थ्रू द गवर्नर जनरल the for the administration of the province by the restoring to device known as diarchy or the dual government. तीसरा पॉइंट है द सब्जेक्ट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वर टू बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सेंट्रल एंड द प्रोविंसेस. सेंट्रल सब्जेक्ट आर दोस विच exclusively kept under the control of the central government. The provincial subject is the subject divided into the transfer and the reserve subject. ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या कौन कौन सा था? Transfer subject were to be administered by the governor with the aid of the minister responsible for the legislative council, in which the proportion of the elected member was raised to 70%. The reserve subject were to be administered by the governor and his executive council with no responsibility to the legislature. और आपके पांचों पॉइंट है द प्रीवियस सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन इन administrative, legislative and the financial matter was relaxed. Sources of revenue were to be divided into two categories so that the provinces could run the administration with the revenue raised by the provinces themselves. छठा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, द प्रोविंशियल बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट. इस टाइम में प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट जो है दोनों अलग अलग कर दिए गए थे. फिर नेक्स्ट पॉइंट था द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वॉज empowered टू प्रेजेंट इट्स ओन बजट एंड लेवी इट्स ओन टैक्सेस रिलेटिंग टू द प्रोविंशियल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू. Next point, the central legislative retain power to legislate the whole country for any subject. फिर next point, the control of the governor general over the provincial legislative was retained by the providing that the provincial bills, even though asserted to the by the governor, would become law only when assented to also by the governor general. Next point is the governor was empowered to reserve a bill for consideration of the governor general if it was related to some specified matter. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू ही कंटिन्यूड इन रिमेन रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया. फिर नेक्स्ट पॉइंट, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड मोर, ठीक है, मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर दिस पर्पज बाई कैमरल legislature का कॉन्सेप्ट आया. द अपर हाउस वॉज नेम्ड एज द काउंसिल ऑफ स्टेट. दिस वॉज कंपोज ऑफ 60 मेंबर ऑफ होम 34 वेर इलेक्टेड. द लोअर हाउस वॉज नेम्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली. दिस वॉज कंपोज ऑफ अबाउट 144 मेंबर्स ऑफ होम 104 जो है इलेक्टेड थे. The electorates were arranged on the communal and the sectional basis, developing the Parliamento device further. The Governor General overrides powers in respect of the central and the legislature were written as follows. A. His prior sanction was required to introduce a bill relating to certain matter. B है, he had the power to veto or resolve for the consideration of the crown or any bill passed by the Indian legislature. C क्या है, he had converse power of certifying bill or any grant refused by the legislature. He could make ordinance in case of emergency. अब देखते हैं साइमन कमीशन. ठीक है, Simon Commission, the commission headed by the Sir John Simon, constituted in 1927 to inquire into the working of the Act of 1919. Placed its report in 1930. The report was examined by the British Parliament and the Government of India bill was drafted accordingly. ठीक है, अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, पहला पॉइंट, द एक्ट ऑफ 1935 प्रिस्क्राइब अ फेडरेशन टेकिंग द प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट नेटिव स्टेट एज अ यूनिट. ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट वाज ऑप्शनल फॉर द इंडियन स्टेट टू ज्वाइन द फेडरेशन एंड सिंस दे नेवर ज्वाइन फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग. ठीक है, तीसरा है द एक्ट डिवाइडेड लेजिस्लेचर पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस.
चौथा पॉइंट, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस was also exercised by the governor on the behalf of the crown and not as a subordinate of the governor general. Next point, the governor was required to act as a advice of ministers responsible to the legislature. ठीक है. in certain in certain matter the governor was required to act, ठीक है, to act discretion without the ministerial advice and under the control and the discretion of the governor general through him secretary of state. ठीक है. Next point, the executive authority of the center was vested in the governor or the behalf of crown. Next point, councillor or the council minister responsible to the legislature was not appointed by the through the such provision existed in the Act of 1935. Next point, the central legislature was bicameral, consisting of federal assembly and the council of state. In the sixth province, the legislature was bicameral, ठीक है, compromising a legislative assembly and legislative council. In other provinces, the legislative was unicameral, मतलब 6 थे. ठीक है. Apart from the governor general, power of veto bill passed by the central legislative was also subject to veto of the crown. ठीक है. Next point is the governor general could prevent discussion in the legislature and the suspended the proceeding on any bill if he was satisfied that it would affect the discharge of his special responsibilities. The governor general and the independent powers of legislature concurrently with those of the legislature on some subject. No bill or the amendment could be introduced in the legislature without the governor general previous sanction. A threefold division of Act of 1935. There was a federalist over with federalist exclusive power of the legislature. There was a provincial list of the matter of the which provincial legislature can be jurisdiction. There was a concurrent list over the मतलब दोनों आ सकती थी जिसमें compete कर ले. ठीक है. फिर next point, the governor general was empowered to authorize either of the federal or the provincial legislature to enact the law with respect to any matter which was not enumerated in the absence in the above noted legislature list. ठीक है. अब आते हैं dominion status which was promised by the Simon Commission in 1929 was not confirmed by the Government of India Act 1935. ये मतलब dominion status नहीं मिला. ठीक है. अब आते हैं क्रिप्स मिशन 1942. सीक्वेंस वाइज चलेगा. ठीक है. अब इसमें पहला पॉइंट क्या है कि इन मार्च सर स्टैफर्ड क्रिप्स अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट केम विद अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑन द प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. दूसरा पॉइंट है दीज प्रपोजल वेयर टू बी अडोप्टेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार प्रोवाइडेड द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग कुड एक्सेप्ट देम. अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल क्या क्या प्रपोजल में था, 4 पॉइंट थे. पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज टू बी फ्रेम्ड बाय द elected constituent assembly by the Indian people. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है constitution should give India dominant status. तीसरा पॉइंट है there should be one Indian union comprising all the provinces and the Indian state. चौथा पॉइंट, any province or the any Indian state not accepting the constitution would be free to retain constitutional position existing at that time and with such non-acceding provinces the British government could enter into separate constitutional arrangement. अब आते हैं कैबिनेट मिशन प्लान 1946. कैबिनेट मिशन प्लान 1946. पहला पॉइंट है इन मार्च 1946 Lord Attlee sent a cabinet mission to Indian constituencies of 3 cabinet ministers, namely Lord Patrick Lawrence, Stafford Cripps and A.V. Alexander. The object, दूसरा पॉइंट क्या है, the object of the mission was to help India to achieve its independence as early as possible to set up the constituent assembly. The cabinet mission rejected the claim for the separate constituent assemblies and a separate state for the Muslim. ठीक है. According to the cabinet mission plan, there was to be union of India comprising both the British India and the state and having jurisdiction over the subject of foreign affairs, defense and communication. All the residuary power were to be vested in the provinces and the state. ठीक है. The union was, next point, the union was to have executive and the legislative consisting of representation of the provinces and the state.
फिर नेक्स्ट पॉइंट है एनी डिसीजन इन्वॉल्विंग मेजर कम्युनल इश्यूज इन द लेजिस्लेचर was to require a majority support of representative of each of the two major communities representing present and voting as well as a majority of all the members present and voting. नेक्स्ट पॉइंट क्या है द प्रोविंसेस कुड फॉर्म ग्रुप विथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड ईच ग्रुप कुड बी कंपिटेंट टू डिटरमाइन द प्रोविंशियल सब्जेक्ट. अब आते हैं माउंट बेटन प्लान. ठीक है, द प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया कुड लेट डाउन द माउंट बेटन प्लान. ठीक है, दूसरा है इट वॉज गिवन फॉर्मल शेप एंड स्टेटमेंट मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 3rd June 1947. द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट. पहला पॉइंट है इट इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज अमेंडेड बाय द अडेप्टेशन order both in India and Pakistan for setting up the interim constituent assembly to draw up the future constitution of the country. दूसरा पॉइंट है फ्रॉम 15th August 1947 India ceased to be a dependency and sovereignty of the British Crown over the Indian state and territory relation with the tribal areas lapsed from the date. तीसरा पॉइंट द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाज abolished. चौथा पॉइंट क्या गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर जनरल लॉस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ द लेजिस्लेचर टू कम्पीट विद द लेजिस्लेचर. पांचवा पॉइंट द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया कंपोज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट सीज टू बी एग्जिस्ट ऑन August 14, 1947. द नेक्स्ट पॉइंट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ वाज टू फंक्शन ऑल्सो एज सेंट्रल लेजिस्लेटिव विद द कंप्लीट सोवरेनिटी. दूसरा क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, the cabinet mission envisaged the establishment of constituent assembly to frame the constitution for a country. Member of the constituent assembly were elected by the provincial legislative assembly PLA. Provincial legislative assembly. Each provinces of the of each Indian state were allowed seat in the proportion for its population, roughly the ratio of 1 to 1 million. 1 लाख पे 10 लाख पे एक. हाँ, the seats so ascertained were distributed among the main communities in each provinces. The main communities recognized as Sikh, Muslim and the General. Important committee of the Constituent Assembly and their chairman. ठीक है, अब कौन कौन सी कमेटी थी, कौन कौन से चेयरमैन थे. ठीक है, कमेटी ऑन रूल्स प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमेटी. ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी आपके फिनांस कमेटी. ठीक है, एडहोक आपके ये 3 कमेटी जो थी, कमेटी ऑन रूल्स, स्टीयरिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ये राजेंद्र प्रसाद थे. और एडहोक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, स्टेट कमेटी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थी चारों. ठीक है, अब उसके बाद में एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया सरदार वल्लभ भाई पटेल. ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर. क्रेडेंशियल कमेटी अलादीन कृष्णी अय्यर. हाउस कमेटी पित्ताबाई सीतारामैया. ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी. कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GV मालवणकर. माइनॉरिटीज सब कमेटी SC मुखर्जी. फंडामेंटल राइट सब कमेटी JP कृपलानी. नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड पार्शली सब कमेटी गोपीनाथ बारदौली. excluded and partially excluded areas other than those in Assam subcommittee AV Thakkar. ठीक है, the total members of the constituent assembly was 385 of whom 93 were representative from the Indian state, 292 from the provincial of the British India. After the partition of India, the member of constituent assembly came to 299 of whom 284 were actually present and 26 November 1949 284 were present. ठीक है, 1949 में and signed on the finally approved constitution of India Indian Assembly which had been elected undivided India its first meeting 9 December 1946 and reasonable August 14 1947 as a sovereignty constituent assembly and domination of India. It took 2 साल 11 महीने 18 दिन. Objective resolution was moved first session of the Constitution Assembly on 13th December 1946 by Pandit Jawaharlal Nehru, which was adopted after the considerable deliberation and the debate in the Assembly on 22nd January 1947. The following objectives were embodied in the resolution. पहला क्या था, foster the unity of India and to ensure the economic and political security, to have written constitution and proclaim India as a sovereign democratic republic, to have federal form of government with the distribution of powers
between center and state to guarantee and secure justice, equality, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association, and action to all the people of India, to provide adequate safeguard for the minorities, backwards and tribal areas, and depressed and other backward classes, to maintain the integrity of India or Republic, ठीक है, and its sovereign right on land, sea, and air according to the justice and law of a civilized nation, to attain rightful and honored place in the world, and make its full and willing contribution to the promotion of the world peace and the welfare of mankind. These principles, the principle of the constitution, were outlined by the various committee of the assembly. There was general discussion. There was general discussion on the reports of these committee. The assembly appointed the drafting committee with Dr. Ambedkar as a chairman on August 29, 1946. The drafting committee headed by the Dr. Ambedkar submitted a drafting Constitution of India to the President of Assembly on 21st February 1948. The members of drafting committee were N. Gopal Swami Iyer, Aladi Krishni Swami Iyer, K. M. Munshi, Mohammad Sadaatullah, B. L. Mittal, later replaced by N. Madhav Rao, ठीक है, डॉक्टर D.P. खैतान रिप्लेस बाय द T.T. कृष्णमाचार्य, ठीक है. The third and the final reading of the draft was completed on November 26, 1949. On this date, the signature of the President of Assembly was appended to it and Constitution was declared as passed. The provision relating to the citizen election and the provision of a parliament elected, etc., were amended with the effect that is from 26 of November 1949, and the rest of the provision of the Constitution came into force on January 26, 1950, and this date is referred to in the Constitution as the date of its commencement. ठीक है. अब क्या करते हैं, different sources of Indian Constitution, ठीक है, different sources of Indian Constitution. Although the skeleton of the Indian Constitution was derived from the Government of India Act 1935, many provisions were imported from other constitutions of the world. Some of them are listed. Government of India Act 1935 से क्या लिया? This act formed a basis of blueprint of the Constitution of India with the feature of federal system, office of the governor, emergency power. Beside the Constitution of India has India borrowed from them. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से क्या लिया गया है? लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पहला चीज़. दूसरा रूल ऑफ लॉ. तीसरा सिंगल सिटीजनशिप. चौथा बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम. और पांचवा है ऑफिस ऑफ कैग. फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएस क्या लिया गया? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, प्रीएम्बल एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर टू प्रोवाइड रेजुलेटरी पावर टू द सेंटर, सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिडिक्शन. ठीक है. अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आइलैंड से, डीपीएसबी, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड द नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट. 12 मेंबर जो होते हैं. वेमेयर ऑफ जर्मनी, प्रोविजन कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूरिंग इमरजेंसी. अच्छा, इमरजेंसी में इसका लिया ब्राजील, इसका जर्मनी का. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, अमेंडमेंट विथ 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. Constitution of France, Republican system, principle of liberty, equality, fraternity. Constitution of former USSR, fundamental duties, ideas of justice in the preamble. ठीक है भाई. अब आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. पार्ट 1, 1 से लेके 4 आर्टिकल. इसमें है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. पार्ट 2 में 5 से 11 सिटीजनशिप. पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट में 12 है डिफिनेशन. 13 है लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और डेरिवेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. अब आते हैं राइट टू इक्वालिटी, जो कंसिस्ट करता है 14, 15, 16, 17, 18. 14 में है इक्वालिटी बिफोर लॉ. 15 में है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ RRCSP. ठीक है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है. आर्टिकल 16 के इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17. एबोलिशन ऑफ टाइटल्स 18. राइट टू फ्रीडम में 19, 20, 21, 22 आर्टिकल आते हैं. ठीक. 19 में क्या? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच.
20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 क्या है, 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। 21A क्या है, राइट टू एजुकेशन। 22 क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 23 और 24 आते हैं। 23 में कौन सा है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। 24 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25, 26, 27, 28। 25 में क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। 26 में क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। 27 में क्या है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। 28 में क्या है, फ्रीडम एज टू अटेंड एट ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और द रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कल्चर एंड एजुकेशन राइट 29 और 30। 29 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। 30 में क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सेविंग द सर्टेन लॉज 31A, 31B, 31C क्या है, सेविंग। 31A क्या है, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट। 31B क्या है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन। 31C कहाँ है, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग द इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज 32, 33, 34, 35 चार है। 32 में क्या है, रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कंफर्ड बाय द दिस पार्ट। आर्टिकल 33 क्या है, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट ऑफ कंफर्ड बाय द पार्ट टू द फोर्सेस आर्म फोर्सेस। 34 में क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट कंफर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शलाइजिंग फोर्स इन एनी एरिया। 35 में क्या है, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। फिर आपके पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ जाएंगे। 36 में क्या है, डिफिनेशन। 36 में क्या आपके डिफिनेशन। 37 में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन इन दिस पार्ट। 38 में क्या, स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। 39 में क्या, सर्टेन प्रिंसिपल द पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। 39A में क्या है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 40 में क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 41 में क्या, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू फॉर्म एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। 42 में क्या, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर द वर्क एंड मैच्योरिटी रिलीफ। 43 में क्या, लिविंग वेजेस एंड फॉर द वर्कर। 43A में क्या, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 43B में क्या है, द स्टेट शैल इंडेवर टू प्रमोट वॉलंटियर फॉर्मेशन एंड ऑटोनोमस फंक्शन डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 44 क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ द सिटीजन। 45 क्या है, प्रोविजन फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6। 46 क्या है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। 47 क्या है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। 48 क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 48 है क्या, प्रोटेक्शन ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट सेफगार्डिंग फॉर द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। 49 क्या, प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। 50 क्या, सेपरेशन ऑफ जेई जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। 51 क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। ठीक है, चलो भाई, पार्ट 4 आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी। अब पार्ट 5 द यूनियन। अब इसमें एग्जीक्यूटिव में आते हैं। एग्जीक्यूटिव में 52, 53, 54, 56, 52, 54, 61, 63, 64, 65, 66, 72, 74, 76 इतने आर्टिकल कवर होते हैं एग्जीक्यूटिव में, चैप्टर 1 में, पार्ट 5 में यूनियन में। ठीक है, 52 क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। 53 में क्या, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। 54 में क्या, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। 61 में क्या, प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। 63 में क्या, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 में क्या, वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। 65 में क्या था, वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज इस फंक्शन ड्यूरिंग द कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। 66वां क्या है, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। 72वां क्या है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा टू सस्पेंड और रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। 74 क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। 76 क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब चैप्टर 2 पार्लियामेंट। 79 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। 80 क्या है, कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा। 81 क्या है, कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा। 83 क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट।
84 क्या है? क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। 85 क्या है? सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, प्रोग्रेशन एंड डिसोल्यूशन। 86 क्या है? राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउसेस। 87 क्या है? स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। 88 क्या है? राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल एट रिस्पेक्ट हाउस। 89 क्या है? चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। 90 क्या है? वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ द रिमूवल एंड इंटाइटलमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द डिप्टी चेयरमैन। 93 क्या है? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। 94 क्या? वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ द रिमूवल एंड फ्रॉम द ऑफिस एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी स्पीकर वगैरह। 95 क्या? पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर अदर स्पीकर टू परफॉर्म ड्यूटीज एंड ऑफिस एक्ट एज अ स्पीकर। 98 क्या? सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट। 99 क्या? ओथ एंड अफर्मेशन बाय द। 100 क्या? वोटिंग इन द हाउस ऑफ पावर हाउस, वोटिंग इन हाउस पावर ऑफ हाउस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। 105 क्या? पावर प्रिविलेजेस एंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द मेंबर ऑफ कमिटी देयर ऑफ। 106 क्या? सैलरी एंड अलाउंसेस। 107 क्या है? प्रोविजन ऑफ इंट्रोड्यूस एंड पासिंग ऑफ बिल। 108 क्या है? जॉइंट सेटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। 109 क्या है? स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। 110 क्या? डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। 111 क्या? एसेंट टू बिल। 112 क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट जिसको हम बोलते हैं। 113 क्या? प्रोसीजर पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट। 114 क्या? अप्रोप्रिएशन बिल। 115 क्या? सप्लीमेंट्री एडिशन और एक्सेस ग्रांट। 116 क्या है? ओट्स ऑन अकाउंट्स, ओट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। 117 क्या है? स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंस बिल रूल्स। 118 क्या है? रूल्स प्रोसीजर। 119 क्या है? रेगुलेशन बाय द लॉ ऑफ द प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल बिजनेस। 120 क्या है? लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट। 121 क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्कशन ऑन द पार्लियामेंट। 122 क्या है? कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। चैप्टर 3 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट चैप्टर 3 123 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू promulgate ordinance during the recess of parliament. चैप्टर 5 द यूनियन जुडिशरी। 124 क्या है? एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 125 क्या है? सैलरीज ऑफ जजेस। 126 क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट और एक्टिंग चीफ जस्टिस। 127 क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ एडोक जज। 128 क्या है? अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सीटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 129 क्या है? सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 130 क्या है? सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 131 क्या है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 132 क्या है? अपीलेट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट। 133 क्या है? अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स ऑफ हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू सिविल मैटर्स। 134 क्या है? अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू द क्रिमिनल मैटर्स। 124 ए। 134 ए क्या है? सर्टिफिकेट फॉर द अपील टू सुप्रीम कोर्ट। 134 ए। 135 क्या है? जुडिक्शन ऑफ द पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट। 136 क्या है? 136 का आंकड़ा स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। 137 क्या है? रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। 138 क्या है? इनलार्जमेंट ऑफ जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 141 क्या है? लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल द स्टेट। 143 क्या है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। 144 क्या है? सिविल एंड जुडिशियल ऑथोरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चैप्टर 5 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 148 क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। 149 में क्या इसकी ड्यूटी होती है। अब आते हैं पार्ट 6 में स्टेट है। पार्ट 8 में 239 से 241 यूनियन टेरिटरी है। पार्ट 9 में 243 से 243 ओ द पंचायत। पार्ट 9 ए म्यूनसिपालिटी है। 243 पी से 243 जेड और जी। पार्ट 9 बी 243 जेड एच द कोऑपरेटिव सोसाइटीज 2011। पार्ट 10 244 से 244 ए शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। पार्ट 11 आर्टिकल 245 से 263 रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। पार्ट 12 आर्टिकल 264 से 300 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट। आर्टिकल 300 ए राइट टू प्रॉपर्टी। पार्ट 13 आर्टिकल 301 से 360 ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद द स्टेट। पार्ट 14 सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। 14 ए
ट्राइब्यूनल्स। पार्ट 15 इलेक्शन। पार्ट 16 आर्टिकल 330 से 342 स्पेशल प्रोविजन फॉर द सर्टेन क्लासेस। पार्ट 17 आर्टिकल 343 से 351 ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट 18 352 से 360 इमरजेंसी प्रोविजन। पार्ट 19 मिसलेनियस जो गायब हो गए। पार्ट 20 आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 21 369 से 392 टेम्पोररी ट्रांसलेशन एंड स्पेशल प्रोविजन ऑफ द स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट। पार्ट 22 आर्टिकल 393 to 395 short titled commencement of authorities text in the Indian and repeat schedule of Indian Constitution। 12 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल 28 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरी, अब तो 9 हो गई। सेकंड ABCDE कैटेगरी में स्टेट को रखना, ठीक है। पहले में सैलरी एंड इम्प्लॉयमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा इमीडिएट हो गया, तीसरा सैलरी लोकसभा लोकसभा, डी सैलरी, थर्ड ओथ हो गया, फोर्थ एलोकेशन ऑफ सीट राज्यसभा, फिफ्थ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल्ड शेड्यूल्ड एरियाज एंड सिटीज, सिक्स ट्राइबल एरियाज एंड नॉर्थ स्टेट, कहीं से मरीन ले जाऊंगा, सेवेंथ लिस्टिंग, एट्थ 22 लैंग्वेज, नाइन्थ भूमि वाला, दसवां क्या था भाई, अमेंडमेंट, डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, 11th पंचायती राज, 12th म्युनिसिपालिटी,